Hello students, this is the determination of GM and PM from the board plot. Now, what do you mean by GM and PM and why we study about the GM and PM? Of course, any control system or automatic system, is unstable or unstable. Then from the GM and PM, we can find out the relative stability of the system, that is how far or how away the system from the point of instability, वो instability के point से वो कितना दूर है. That is the GM and PM. That is the relative stability. And from the GM and PM we can find the information about the relative stability. So it is very important to study about the GM and PM. And in the previous video lecture, in the next plot session, हम लोग GM और PM के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं. Now GM and PM हम लोग बात किए थे in the last video lecture, in the previous video lecture. PM phase margin. Phase margin is that is the 180 degree plus phi. Phi the angle of GS J omega. GS J omega at omega GC. Omega GC क्या है हमारा? That is the gain cross over frequency. Gain. To find omega GC, gain. Gain यानी कि magnitude that be equal to 1. Then at omega equal to omega GC, magnitude equal to 1. Why we calculate like that? Because there is a point of -1 0, which can be written as -1 plus g0, whose magnitude is 1 and angle is -180 degree. This is the critical point which decides the point of instability. Then magnitude 1, that is the unit radius. Circle having the unit radius determine the point of instability, and the negative real axis or -180 degree decides the point of instability. Now, फेज मार्जिन यानी कि कितना फेज एंगल जो है वो दूर है इनस्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वही हम लोग फेज मार्जिन निकालते हैं 180 डिग्री प्लस 5. तो फेज मार्जिन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. वैसा फ्रीक्वेंसी जो गेन को क्रॉस कर रहा है, कौन से गेन को? जिस फ्रीक्वेंसी पे गेन 1 हो जा रहा है. That is the omega equal to omega GC, that is 1. Now to find PM from the board plot, हम लोग बोर्ड प्लॉट से कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? For this there are 3 different figures. That is very important to study about these figures. Find the point O at which board magnitude plot intersect at 0 dB line. In the board magnitude plot, in the board phase angle plot, 0 dB, this is the board magnitude. The board magnitude intersect at 0 dB line, that is the 0 point, O point. In figure B, O point. In figure C, O point. Clear है? Now, from the point O, draw the vertical line to the frequency axis. इससे हम लोग क्या किए? From the point O से एक vertical line draw किए, to the frequency axis like that, and like that. It gives omega GC, that is the gain cross over frequency. Then this is the omega GC, like that, omega GC. Clear? Now, the vertical line also intersect the board phase angle plot at any point P. जो हम लोग यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखो सारी जगह बोर्ड फेज एंगल को इंटरसेक्ट कर रहा है. दिस वन नेम्ड एज पॉइंट P. एट एनी पॉइंट P. तो देखो यहाँ पॉइंट P बोर्ड फेज एंगल को इंटरसेक्ट किया ओमेगा जीसी वाले लाइन पे, ओमेगा जीसी लाइन पे पॉइंट P को इंटरसेक्ट किया. ओमेगा जीसी वाली लाइन को पॉइंट P को इंटरसेक्ट किया. नाउ then the vertical distance between the point P and -180 degree line is PM. Now ये -180 डिग्री लाइन है,
यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, दैट इज द पॉइंट P। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज द फेज मार्जिन। क्लियर? ओके, इन दिस फिगर, ओके, वर्टिकल पॉइंट यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यही -180 डिग्री लाइन है। देन फेज मार्जिन इज 0 डिग्री। यहाँ पे फेज मार्जिन देखो, ये -180 डिग्री से लाइन से नीचे है, देन दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज द फेज मार्जिन। नाउ if the point P lies above -180 डिग्री लाइन, अगर -180 डिग्री लाइन से ऊपर होता है, ओके, इसको हम लोग फिगर ए ड्रॉ कर देते हैं, इसको ये फिगर ए बोल दिए, फिगर ए। देखो -180 डिग्री से ऊपर लाइन है, देन फेज मार्जिन इज पॉजिटिव। ओके, इफ द पॉइंट P lies on -180 डिग्री लाइन, ओके, -180 लाइन पे लाई कर रहा है, देन फेज मार्जिन इज 0 degree. Okay, if the point P lies below -180 degree line, PM less than 0, okay, so this is negative. Okay, now अगर अब हम लोग गेन मार्जिन पे बात करते हैं, फिर से हम लोग वहां पे आएंगे। गेन मार्जिन, ऑफ कोर्स, अगेन गेन मार्जिन इज द मैग्नीट्यूड इन dB at what? At phase क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड डेसिबल में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड गेन मार्जिन। ओके, अब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, वैसा फ्रीक्वेंसी जो फेज को क्रॉस कर रहा है, तो कौन से फेज को? फेज यानी कि -180 डिग्री, -180 डिग्री लाइन विच डिसाइड्स द पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी। ओके, तो ओमेगा पी सी, टू फाइंड ओमेगा पी सी, फाई इक्वल टू -180 डिग्री। नाउ टू फाइंड GM फ्रॉम द बोर्ड प्लॉट, बोर्ड प्लॉट से हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, सॉरी। तो स्टेप 1, फाइंड द पॉइंट N एट विच बोर्ड फेज एंगल प्लॉट इंटरसेक्ट एट -180 डिग्री लाइन। हम लोग बोर्ड फेज एंगल को अब देखेंगे, ये बोर्ड फेज एंगल है, ओके, ये इंटरसेक्ट करेगा कहां पे? -180 डिग्री लाइन पे एट द पॉइंट N, ये पॉइंट N पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, दिस इज द बोर्ड फेज एंगल प्लॉट, बोर्ड फेज एंगल प्लॉट एट पॉइंट N, ये इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज द बोर्ड फेज एंगल प्लॉट, ये एट पॉइंट N, ये इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर? नाउ ये फाइंड हो गया। फ्रॉम द पॉइंट N ड्रॉ द वर्टिकल लाइन टू द फ्रीक्वेंसी एक्सिस। इस पॉइंट से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे, N से, फ्रॉम द पॉइंट N, इट गिव्स ओमेगा PC, दैट इज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये बोर्ड फेज, ये जो हमारा बोर्ड फेज एंगल प्लॉट है, -180 डिग्री लाइन को जिस फ्रीक्वेंसी पे, ओके, क्रॉस कर रहा है, दैट इज ओमेगा PC। ओके, ये -180 डिग्री पे ही क्रॉस कर रहा है, ओके, दैट इज ओमेगा PC। ये यहां क्रॉस कर रहा है, दैट इज द ओमेगा PC। ओके, नाउ द वर्टिकल लाइन आल्सो इंटरसेक्ट द बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट एट द पॉइंट G, then the vertical distance between the point G and 0 dB line gives gain margin। अब यहां से हम लोग N से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, तो बोर्ड फेज एंगल को इंटरसेक्ट किया एट द पॉइंट G, तो ये पॉइंट G और 0 dB लाइन के बीच में जो वर्टिकल लाइन है, दैट इज कॉल्ड GM, गेन मार्जिन। देखो यहां से यहां तक ये गेन मार्जिन। अब इस पे आते हैं, ये इस पॉइंट N से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, तो ये बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट को 0 dB पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, देन दिस इज द पॉइंट G एक्चुअली। ओके, तो गेन मार्जिन यहाँ पे क्या हो गया? 0 dB। यहां देखो पॉइंट N से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया? गेन मार्जिन। क्लियर है? नाउ इफ द पॉइंट G lies below 0 dB line, then GM is positive। okay, it is figure A। okay, figure A में देखो GM नीचे लाई कर रहा है, ओके, तो पॉजिटिव। ऑफकोर्स अपने बोर्ड ड्रॉ किया था बोर्ड प्लॉट, तो नीचे पॉजिटिव। ओके, दिस इज द पॉजिटिव, हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं पॉजिटिव -20। ओके, लाइक दैट। ओके,
यहाँ ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ओके, दिस इज द पॉजिटिव like that, this is the positive, negative, sorry, this is the negative and this is the positive. Okay, now if the point G lies on the 0 dB line, GM equal to 0 dB, तो ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो GM equal to 0 dB. क्लियर है? Now if the point G lies above 0 dB line, okay, GM is negative. Okay, above नेगेटिव क्यों? हम लोग बोर्ड फेज एंगल प्लॉट किए तो 0 dB के ऊपर हम लोग माइनस में लेते हैं और नीचे प्लस में लेते हैं। ओके, देन दिस इज नेगेटिव इन डेसिबल, हम लोग डेसिबल में देख रहे हैं, है ना। देन दिस इज फाइनल कंक्लूजन ओके रिगार्डिंग द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। अब हम लोग स्टेबिलिटी पे बात करते हैं। आपको याद होगा फॉर द स्टेबल सिस्टम ओके बोथ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन शुड बी पॉजिटिव। देखो फॉर द स्टेबल सिस्टम gain margin is positive, phase margin is positive. Clear है? Okay, for the stable system, okay, phase crossover frequency is always greater than gain crossover frequency. It is clear? Omega PC is greater than omega GC. Then this is the condition of a stable system. First of all, यहीं से पता चल जाता है ओमेगा PC अगर ओमेगा GC से ज्यादा हो, then condition of a stable. अगर दोनों बराबर हो, okay, condition of marginal stable. अगर आपको ओमेगा पीसी जो है दिख रहा है ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी से लेस देन हो देन दैट इज द अनस्टेबल सिस्टम। ये इसी से पता चल जाता है। इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ ओके अगर बोथ पॉजिटिव हो, जीएम पॉजिटिव पीएम पॉजिटिव, तब भी स्टेबल। ओके, अगर जीएम आपका 0 हो और पीएम आपका -180 डिग्री हो ओके देन दैट इज द मार्जिनल सिस्टम। अगर आपका जीएम नेगेटिव हो और पीएम नेगेटिव हो देन दैट इज द अनस्टेबल सिस्टम। So this is very important to find the stability of the control system and from this point आप यहाँ देख रहे हैं ओके ये इतना एंगल जो है दूर है ओके ये इतना एंगल दूर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी, ये इतना मैग्नीट्यूड दूर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी। ये देखो उस पॉइंट पे आ गया -180 डिग्री क्रिटिकल पॉइंट, -0 डिग्री क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो ये अभी हमारा जो बता रहा है ओके ये स्टेबल सिस्टम बता रहा है बिकॉज दे आर पॉजिटिव। ये अनस्टेबल सिस्टम बोथ आर नेगेटिव। जैसे ये 0 dB की हो जाएगा, ये 0 dB की हो जाएगा, देन दैट इज द मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। ओके, देन फ्रॉम द ओवरऑल डिस्कशन you can find out the GM, PM from the board plot. It is very easy. Okay, now वेरी इजी याद रखेंगे। फेज मार्जिन के लिए हमेशा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमेशा ओके देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, ये देखो हम लोग अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, गेन मार्जिन के लिए ओके हम लोग क्या कर रहे हैं बोर्ड फेज एंगल को देखेंगे पहले, वो -180 डिग्री लाइन को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। गेन मार्जिन के लिए फेज प्लॉट देखेंगे पहले और गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के लिए हम लोग देखेंगे गेन प्लॉट ओके यानी मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो यहाँ पे गेन मार्जिन के लिए हम लोग पहले देखे फेज एंगल प्लॉट, तो जहां इंटरसेक्ट किया -180 डिग्री पे दैट इज ओमेगा पीसी, और फेज मार्जिन के लिए हम लोग देखेंगे बोर्ड फेज एंगल प्लॉट जहां इंटरसेक्ट किया 0 डिग्री पे दैट इज ओमेगा जीसी। गॉट इट? नाउ हम लोग उस पॉइंट से दोनों वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करने पे जो भी वर्टिकल डिस्टेंस आएगा ओके गेन मार्जिन के लिए गेन और फेज मार्जिन के लिए फेज। तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस ये फेज मार्जिन, यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस गेन मार्जिन। ओके, अगर पॉजिटिव आया यानी कि बिलो आया, अब देख सकते हैं पीएम के लिए एबव और जीएम के लिए बिलो, दैट इज द पॉजिटिव। ओके, देन दिस इज द कंडीशन, just memorize it, just understand it, okay, and in the next problem, in the next video lecture, sorry, हम लोग next problem को देखेंगे, that is too important, so इन तक देखेंगे next video भी, okay, thank you।